ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਿਨ ਰਬ ਚਲੈ ਨਿਸ ਸਸ ਚਲੈ, ਤਾਰ ਕਾ ਲਖ ਪਲੋਏ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ, ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਬੁਗੋਹਿ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ, ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਬੁਗੋਹਿ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਲ ਚਲ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ, ਜਿਨੀ ਵਸਾਏ ਤਲ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਵੀ ਚਲਸੀ, ਥਕੇ ਕਵਲ ਇਕਲ। ਹਰੀ ਦਾ ਇਟ ਸਿਰਾਣੇ, ਹੋਏ ਸਵਣ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ। ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ, ਇਕਤ ਪਿਆਂ ਪਾਸ। ਹਰੀ ਦਾ ਇਟ ਸਿਰਾਣੇ, ਹੋਏ ਸਵਣ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ। ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ, ਇਕਤ ਪਿਆਂ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਪ੍ਰਥਕ ਹਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ,
हों तिस पै आप बेचाई, दर्शन हर देखन कै ताई। किरपा करें तो सतगुर मेलने, हर नाम तिहाई। पावन शब्द राई बड़ा प्यारा मैसेज जो गुरु साहब ने दिता है कि जे सुख देहें तां दें, दुख भी तुझे तिहाई। जे भुख देहें तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच आप जलाई। पानी ढोमा पखा फेरी, जो देवें सो खाई। नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल लहो सरनाई। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ 66 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 67 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ, ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਨਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਨਸੀਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੇਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਮੌਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅਗੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੋਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
मैं देखदा मनुख नूं कि साइंस ने जिथे तरक्की की उत्थे अज दे मनुख की सुरत बहुतियां दी मोबाइल दे विच जाके टिक गई है। अज मैं सवेरे बाहर निकलिया की देखदा एक बंदा पानी भरन वास्ते गुरुद्वारे आया है। पानी का डब्बा उसने टूटी ते लाया है, वो भर चुका है। कोई नौजवान बच्चा सी मोबाइल दे विचों गेम खेड रहा है, इतना मस्त है कि उसनों अपने डब्बे की कोई सोझी नहीं। ये पानी नाल नको नक भर गया तो मोबाइल विच इतना मस्त, उस गेम दे विच इतना मस्त कि उसनों पता ही नहीं कि मैं कित्थे बैठा होया, किहड़ी थां ते हां, कोई पता नहीं, गवाचिया होया पूरा। क्योंकि सुरत जिहड़ी है मनुख की जिथे प्रेरणा करती है, जिहड़ी चीज़ां नूं चंगियां लगदियां ने, ये अपनी सुरत नूं आद काल तो उस पासे मोड़दा रहा है। मैं उसनूं आख्या कि तू पानी भरन आया, पानी डुलदा है, तो वह कहना मैं गेम खेल रहा सी, मस्त हो गया, पता ही नहीं लग्या गेम खेलदा है। मैं कि तैनूं पता कित्थे बैठा तू? और बैठा भी ऐसे तरीके दे नाल कि उसनूं ये भी नहीं प्रतीत हो रहा भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। भावें शरीर की खेचल दस रही है कि यह मनुख परेशानी च बैठा है, पर गेम च एडा मस्त है, एडा गलतान है। इस करके आद काल तो मनुख अपने शरीर विच संसार दे विच जिहड़ियां वस्तुआं ने प्रभावित किया है, ये उन्हां दे नाल जुड़दा गया और ये अपनी मौत नूं और सच्चाई नूं भुल गया। बाबा फरीद जी इत्थे गल समझाना चाहते हैं कि संसार दा ये जिहड़ा सुंदर तलाब है, जिहड़ा ये संसार बड़ा सुभावना है, इस संसार दे विचों एक दिन तेरे शरीर ने ही नाश नहीं होना। संसार दे विच जो तू देख रहे ये सारियां चीज़ां ने नाश होना है, क्योंकि जो साडी अखां वेख रही ने दृष्टेन मिथ्या। गुरु अर्जन देव जी पिता आखदे ने जो तैनूं दिस रहा है सब मिथ्या है, नासवंत है, सब कुछ मिथ्या है। पर इन्हां मिथ्या चीज़ां दे विच, नासवंत चीज़ां विच मनुख गलतान है और इस करके मनुख मौत नूं भुल गया। ये भी गल भुल चुकिया मनुख की जो तन उपजियो संग ही सो भी संग न हुआ। जदों असीं संसार दे विच आउंदे ये शरीर लैके आउंदे हाँ, पर जाना है उस वेले इस शरीर ने नाल नहीं जाना। नासवंत है, मिथ्या है, दिस रहा है, पर इसने मिट जाना है। इस करके बाबा फरीद जी मनुख नूं मौत का चिंतन करा रहे हैं, मौत नूं चेते करा रहे हैं। कई बारी मैं सोचदा बहुत सारे धर्म के मार्गां ते चलन वाले जिहड़े पुरख होए, उन्होंने लोगों नूं मौत ही चेते कराई। क्योंकि जदों मनुख नूं मौत चेते आउंदी है, खाना चंगा नहीं लगता, शरीर ते पाना चंगा नहीं लगता, घर चंगा नहीं लगता, परिवार चंगा नहीं लगता, बस मौत के ख्यालों में ही डुबया रहता है, मौत के ख्यालों में ही। इस करके बाबा फरीद जी कहते जो तू संसार दे विच देख रहे हैं आले दुआले, ये सब कुछ विनसनहार है। बाबा जी ने उदाहरण दी, चल चल गईयां पंखियां जिन्नी वसाए तल। हे फरीद, जिन्हां पंछियां दियां डारां ने इस संसार तलाब नूं सोहना बनाया सी। ये पंछी किहड़े ने? जीव आत्मा, जो साडे अंदर जीव आत्मा पाई है। जिन्हां जीव पंछियां दियां डारां ने इस संसार दे तलाब नूं सुंदर बनाया होया सी। कहने जिन्नी वसाए तल, जिन्हां ने इस तलाब नूं सुंदर बनाया होया सी, वसाया होया सी। चल चल गईयां पंखियां, वो आपो अपनी बारी संसार नूं छड़ के तुरियां जा रहीआं हन। जदों वारी आ गई ना, उस वेले संसार नूं छड़ के जाना है, क्योंकि
राणा राव ना कौरै, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंधै धीर। आपो अपनी वारी है, किसी ने इत्थे धीरज नहीं करना, नहीं करना। धनवंता और निर्धन मनहि, ताकि कछु न कानी रे, राजा प्रजा समकर मारै, ऐसो काल विडाणी रे। बाबा फरीद जी भी ये गल समझाना चाहते ने सन कि जिन्हां जीव रूपी पंछियां दी डारा ने इस संसार तलाब नूं सोहना बनाया होया सी, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਚਲ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, फिर ये अपनी वारी भी भुल जाता है। और इसकी हालत इस तरह की है, गुरु तेग बहादुर महाराज आखते ने कि साधु रचना राम बनाई, एक विंस है एक अचरज लख्यो ना जाए। ये प्रभु ने ऐसी अचरज लीला बनाई है कि मनुख के सामने एक का अर्थ है कई विंस रहे ने, अखां दे सामने जा रहे हैं, पर मनुख नूं कोई भुलेखा है कि मैं थोड़ी अजे जाना है। अपने आप नूं मनुख अस्थिर समझ रहा है, थिर समझ रहा है। क्यों? क्योंकि संसार दीयां चीज़ां विच गलतान है, खचित है, मौत नूं भुला के बैठा होया है। संसार जा रहा है, संसार जा रहा है, पर ये इस करके जो भुली बैठा है, कहंदे जिसनूं मैं छड्ड के आया उसने जाना सी, उसकी वारी सी, मेरी थोड़ी अजे वारी आनी है। मनुख दे अंदर जीवन की बहुत प्रबल लालसा है। मनुख अपनी मौत तो बिल्कुल बेखबर है। इसनूं खबर उदों ही मिलती है, बाबा फरीद जी अगे जाके समझाणगे कि केल करन दे हंज नूं अचिंते बाज पए, बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित ना चेते संसो गाली रब कीआं। ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਵੀ ਚਲਸੀ, ਥੱਕੇ ਕਵਲ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਜਗਤ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ दिन रब चलै निस सच चलै, तारका लख पलोए। दिन दे विच सूरज चलदा है, रात नूं चंद्रमा चलदा है, तारे चलते हैं। ये सारे जो कुछ दिखाई दे रहा सब कुछ नासवंत है, नासवंत है। पर मनुख नूं अपनी मौत चेते नहीं। कई बार मनुख कह दिंदा देखो मच्छर की उम्र केवल 24 घंटे है, इसने 24 घंटे जीना। और तुसी देखो कि मछली की उम्र 3-3 हज़ार साल भी है। और मछली मनुख नूं कह सकती, जिवें मनुख कहता मच्छर तेरी भी कोई उम्र है, तू 24 घंटे जीवना बस। तो मछलियां कह सकदियां बंदे तेरी भी कोई उम्र है 50-60 साल, इतना कुछ जीना। तो सूरज की उम्र जिहड़ी है वो लखां हज़ारां साल होएगी, पर एक दिन विंसना तो उसने भी है। दिन रब चलै निस सज चलै, तारका लख पलोए। लखां तारकां दा जिहड़ा मंडल है सब नासवंत है। मुकाम ओही एक परमात्मा मुकाम है। नानका सच भगो, एक सच है जिहड़ा सदा स्थिर रहने वाला, बाकी सब कुछ विंसनहार है।
कदी ऐसा सी कि संसार विच कुछ नहीं सी, वो परमात्मा सी। कदी ऐसा भी होएगा संसार विच कुछ नहीं होएगा, फिर वो कला होएगा। कदी ऐसा सी कि अरबद नरबद धुंधु कारा, तरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुन समाध लगाए, ना चंद्रमा ना सूरज, कुछ भी नहीं सी, सब कुछ अलोप सी। अकाल पुरख की कृपा हुई, उसके हुक्म दे विच कीता पसाओ, एको पवाओ तिसते होए लख दरियाओ। ये लखां दरिया बन गए, पर ये सब कुछ नासवंत ने। ਇੱਥੇ तक महाराज ने कहा कि अंड विनाशी जेर विनाशी उत्पुज सेत विनाधा। अंडे तो पैदा होने वाले, जेर पसीने तो पैदा होने वाले, और जो जितने भी रूप ने संसार की उत्पत्ति दे, जितनियां भी खानियां ने, ये सारियां विंसनहार ने, विंसनहार ने। और मनुख मौत तो वाकफ नहीं है। बाबा फरीद जी इन्हू समझाना चाहते ने, भाई तू अपने आले दुआले देखता सही, इत्थे जितने भी पंछी सन, जिन्हां दे करके सरोवर तलाब सुंदर लगते सन, वो सारे दे सारे उस सरोवर नू छड्ड के चले गए। उस सरोवर ने भी चले जाना है, उसने भी खत्म हो जाना है। ते जिहड़े कंवल फुल उस विच खिड़े सन, उन्होंने भी एक दिन कुमला जाना है, मर जाना, खत्म हो जाना है। और कि सृष्टि के सोने पदार्थ जितने भी तैनू प्रभावित कर रहे हैं, ये सब कुछ ही नासवंत है। तू तो नाश होना ही है, बाकी जो कुछ नज़र आ रहा है वह भी नासवंत है। इस करके गुरबाणी मनुख नू इन्हां नासवंत पदार्थों तो निकाल के और उस प्रभु नाल जोड़ना चाहती है, जिहड़ा सदैव अविनाशी है। कहती है कि अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई। अविनाशी नू जब अपने मन की मैल नू दूर कर, अविनाशी नाल जुड़। पर यह तां होवेगा जे यकीन बन गया कि जन्मं ता मरणं, भी जन्म है तो मौत भी लाजमी है। एक मौत है, पर मौत तो मनुख लुकदा है, डरदा है, घबराउंदा है। इस करके गुरबाणी ने आख्या कि जग मरण ना पाया, नित आप लुकाया, मत जम पकड़ै लै जाए जियो। मनुख नूं मौत नहीं पाउंदी। जग मरण ना पाया, नित आप लुकाया, मौत तो बचदा फिरदा है मनुख। पर जिस दिन मौत का सद्दा आना, उन्होंने इस दिन ते जमा ने फड़ के लै जाना, लै जाना। ऐसे जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ने नाश हो जाना है। तो मनुख नूं बार बार बाणी कहती कि कहाँ विसासा इस भांडे का, इतनक लागो ठणका, आगे को कुछ तुल्हा बांधो, क्या भरवासा धन का। अगे वास्ते कोई तुल्हा तो बंद। फिर अगे बाबा फरीद जी दी मनुख दी इस असलियत नूं होर दस रहे ने। फरीदा इट सिराने ओए सवन, आखन लगे हे फरीद, जीव पंछियां दियां तुरियां जा रही जिहड़ियां डारां वांग, जो तेरी वारी आई ना, उस वेले वारी आउण ते तू भी संसार तो चला जाएगा। क्योंकि उस वारी ने तेरे जीवन नूं नहीं देखना कि तू कितनी जिंदगी जी है। क्योंकि नह वारिक न जोब न ना विरदी कछ बंद, ओ वेरा ना बूझिया जब आए परै गलफंद। उसने वेला नहीं पूछना, सवेर है, शाम है, बच्चे ब्याणे ने या बच्चे अजे होए नहीं, कुछ नहीं पूछना। तेरे कोलों कोई सलाह नहीं लैनी। ताई गुरु नानक पातशाह ने आख्या कि सरफ है सदा सदा, एवें गई विहाए, नानक किसनू आखी है बिन पुछिया ही लै जाए। वो पुछ के नहीं लैके जाता। जे परमात्मा पुछ के फैसले करे ना, तो इत्थे कोई बंदा ना जावे। पहला बंदा आखेगा मैं पढ़ाई करनी है, फिर आखेगा मैं अजे ब्याह करना है, फिर ब्याह करन तो बाद बच्चे होणगे, बच्चों तो बाद आखेगा कि मैं बच्चों के ब्याह करने हैं, बच्चों के ब्याह हो गए, फिर आखेगा
ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਸਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੋਤਾ ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਟਲ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਐਲਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿਰਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਿਰਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਿਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ, ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵੀ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਵੀ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ, ਡਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਨੰਤਰ ਵੈਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨੰਤਰ ਵੈਦ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ
उसने श्राप दिता। ये धनंतर वैद उधर बचाने वास्ते तुरया, जदों नेड़े आया उसनूं कहा भी तूं ये की कीता। सरंगी ऋषि इसदा चेला सी। सरंगी ऋषि नूं कहा भी तूं ये चंगा नहीं कीता, भी राजा परिषद बड़ा चंगा है, परोपकारी राजा है, तैनूं ऐसा नहीं करना चाहिए। कहना कि गुरु जी हुण जो मर्जी होवे, मैं श्राप दे दिता तो अज तो 7वें दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। मौत एडी प्रबल है, दास बेनती करे कि उधरों तक्षक नाग डंगण वास्ते तुरया, इधर धनंतर वैद बचाने वास्ते तुरया। रस्ते विच दोनों का मिलाप होया। धनंतर वैद की शक्ति नूं तक्षक नाग ने वेख लिया भी जे मैं उत्थे डंग मारिया तो इसने बचा लेना, तो पहला रस्ते विच लंबा पै के सोटी बन के धनंतर वैद नूं तक्षक नाग ने खत्म किया। उस तो बाद राजे परिषद कोल गया, उसनूं भी पता चल चुकिया सी भी 7वें दिन बाद मेरी मौत है। उसने शीशे दे महल तैयार किया जिहदे विच कीड़ी भी तुर के जावे वो भी नज़र आउंदी सी। उहदे विच धार्मिक ग्रंथां दे पाठ पूजा करनी शुरू कर दी। तक्षक नाग नेड़े गया भी अंदर जाण दा कोई प्रबंध नहीं, कोई अंदर ना जांदा है ना आउंदा है, दरवाजे बंद ने, महल चारे पासों बंद है। इसने की वेख्या कि मालन सवेरे सवेरे बगीचे विच जांदी तो फुल चुन के राजे परिषद ते धार्मिक ग्रंथां वास्ते जाके अर्पण कर दी है। इसने की कीता कि कीड़ी का रूप धारण किया, उस फुल दे विच बैठ के ये अंदर चला गया और अंदर जाके सप का रूप धारण करके 7वें दिन राजे परिषद नूं डंग मारिया तो उसकी मौत हो गई। ये इतिहास की गाथा लिखी है कि मौत का दिन पक्का है और जिस दिन मौत आनी है दुनिया की कोई ताकत बंदे नूं बचा नहीं सकती, बंदे नूं जाना ही पैंदा है। जिस दिन तेरी बारी आनी है, बाबा फरीद जी कह रहे ने फरीदा इट सिराने पोहे सबन कीड़ा लड़ियो मास। उस दिन की होवेगी जो तेरी बारी आई तू मर जाना है। क्योंकि बाबा फरीद जी इस्लाम धर्म नूं मनन वाले ने, इस्लामी पीर ने, फकीर ने, तो उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक आख्या कि फिर की होवेगा कि तैनूं कबर दे विच दफना देना है, ते सिर हेठा मिट्टी जिहड़ी है वो इट की थां होवेगी। इट सिराने मिट्टी दी इट तेरे सिराने होवेगी। पोहे सबन, पोहे का अर्थ हुंदा धरती विच, और तू कबर दे विच सुता पिया होवेगा। मखमल के गद्दे नहीं होणगे, फुल्लां दीयां सेजां नहीं होणगियां, संसार के सुख नहीं होणगे। उस कबर दे अंदर धरती दे उत्ते कबर दे तू सुता होवेगा। कीड़ा लड़ियो मास, ते तेरे पिंडे विचों कीड़े तुरदे होणगे। तेरे शरीर दे मास नूं ओ कीड़े नोच रहे होणगे, खा रहे होणगे। कीड़ियां ने तेरा मास सारा खा लेना है। सारे शरीर में छोटे छोटे कीड़े जिहड़े ने वो तुरदे होए होणगे, तेरे शरीर नूं लड़ रहे होणगे, पाओ तेरा मास खा रहे होणगे। एक गल दस, केतड़ियां जुग वापरे इकत पिया पास। इस तरह एको पासे पिया ढेर लंबा समा लंघ जाएगा, सुते सुते पासा भी नहीं पलट पाएगा। इत्थे ते तू मखमल के गद्दियां ते पासा पूरी रात कदे उस पासे कदी उस पासे, पर जिन्ना कबर दे विच पै जाना एको पैसे पासे पता नहीं कितना लंबा समा तेरा जिहड़ा है ना वो तू उत्थे पिया रहेगा। इकत पिया पास, इकत का अर्थ है एक पासे, उत्थे पासे नहीं पलटेगा। इत्थे ते बंदा कहंदा रात पासे पलट के मैं गुजार लेना, पर उत्थे पासे नहीं पलटे जाएंगे। केतड़ियां जुग वापरे, कितना लंबा समा उस कबर दे विच तैनूं पैना पेगा। तेरी ये हालत होगी, उत्थे तेरी कोई मर्जी नहीं चलेगी। तेरे शरीर की यह हालत होगी। बाबा फरीद जी इत्थे समझाना चाहते हैं जिसनों अपनी ये असलियत नज़र आ गई कि एक दिन मेरे शरीर का ये कुछ होना है, इस शरीर ने मिट्टी विच मिल जाना है, और जिस नाल मौत मनुख नूं जगाएगी उस नाल मनुख फिर गाफल नहीं रह सकता। पर जे मनुख नूं ये चेते नहीं ना, तदों तैनूं किसे जगाना नहीं, तो हुण
ਤਾਂ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਜਗਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਖਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਜੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਛੜਾ ਤਾਹੂ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੂ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਇਹ ਲਾਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ। ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਜੇ ਅੰਤ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜ ਲੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਣ ਹੋਏਗੋ ਲਾਂਭੇ ਗੋਂਡ ਪਸਾਰ। ਉੱਠ ਜਾ, ਜਾਗ ਲੈ, ਉਜੂ ਕਰ ਲੈ। ਉਜੂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੇਗਾ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ। ਇਹੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ। ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ, ਆਗੇ ਸਾਹਾ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਨਾ ਪਾਲ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਤੇਰੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਵਿਆਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਸਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਗਈ,
जिस तरह एक खबर मिल गई कि खसम मरै तो नार न रोवै, उस रखबारा ओरो होवै। भी जिस तरह तू मालिक बनया बैठा है, मरेंगा उस दिन इस प्रॉपर्टी ने, धन पदार्थ, सोने चांदी ने बिल्कुल नहीं रोना, सगों इसकी राखी करने वाले होर बन जाएंगे। और वो जेड़े राखी करने वाले ने वो भी फिर भुल जाएंगे भी असी मालिक हाँ। और सच्चाई ये है वो मालिकां भी फिर एक दिन वो घर छड्डना पैना है, उसके मालिक फिर होर बन जाएंगे। पर यह असलीयत नूं कोई विरला बंदा ही जानदा। इस करके बाबा फरीद जी उस मौत नूं चेते कराउंदे हन। और मनुख की असलीयत की है देखो ना, जीवन दे विच रब किवें चेते आ सकता है। एक थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल करके वेखिए, विचार करो कि असी मर गए हाँ, मौत आ गई है, सानू चक के शमशान घाट ले जाया गया, फट्टे ते पा के उत्थे जाके चिखा तैयार हो गई है, चिखा दे उत्ते रख दिता है, लकड़ा ला के साड़ दिता है। और उस सड़न तो बाद उस शरीर पिंडा सुहा मिट्टी हो गया, हवा आई है, मिट्टी उड़ गई है। बस इतना ही जीवन है साडा, होर की है? किस चीज़ का मान है, किस चीज़ का अहंकार है? सिर्फ इतना जीवन है मनुख दे कोल। किते ये दरअसल किते जो सिमरन करो ना, इस चीज़ नूं याद करो। और जेड़े कहते ना सानू साडा मन नहीं टिकदा सिमरन विच, पहला ये अभ्यास करया करो कि मैं मर गया हाँ, मेरी लाश सड़ रही है, लोगों ने गुरु हाथ जोड़ के वापस आ गए ने। इस तरह अनुभव करया करो, अपनी आत्मा नूं पासे करके। शरीर अग दे विच है, आत्मा बाहरों सारा दृश्य देख रही है। जिन्हां पिछे मैं तेरे नाम नूं रब्बा भुलाया सी, वो सारे हुण छड्ड के चले गए ने, सारे छड्ड के चले गए ने। इस दृश्य नूं किते देखोगे, उस वेले समझ विच आ जाना है कि जिस पिछे मैं हाय तोबा कर रहा, मैं कर रहा, ये सब कुछ भी नहीं है। एवें संसार दे विच ये सब कुछ छड्ड के जाण वाली सारी चीज़ां ने। और फिर ऐसा पक्का टिकाणा मिल जाना है जिथे मेरी कोई होंद नहीं है, जिथे मेरी मन मर्जी नहीं चलनी। अज तक बंदा कहना मेरी मर्जी है, मैं नाम जपां कि ना जपां। बंदे नूं जे गुरु कर, बंदा कहना मेरी मर्जी है। पर जिस दिन कबर दे विच चले जाना है, जब सड़ जाना है, उस दिन मनुख तेरी मर्जी नहीं जे चलनी। बाबा फरीद जी इस असलीयत नूं समझाना चाहते हैं। हुण गाफल ना हो, हुण जाग जाग के जिस काम वास्ते ये जीवन मिलया है वो काम कर। और माफ़ कर देना मैनू, अज मनुख जागदा है पर पूरी पूरी रात फिल्मां देखदा है, पूरी पूरी रात नाटक देखदा है, होर बहुत कुछ देखदा है। सिख ने जागना सी परमात्मा की बंदगी विच। और गुरु नूं पुछ लो कि किस तरह का जागना हो सकदा। जागना जागन नीका, हर कीर्तन में जागना। सिख का जागना परमात्मा की कीर्ति दे विच होवे, वाहिगुरू की सिफत दे विच होवे, यह सिख का जागना है। सिख का जागना परमात्मा की इबादत के वास्ते है। पर असी लोग भी जाग रहे हाँ होर कामां वास्ते। गुरु कृपा करे मालक की सिफत वास्ते किते सानू जागण की जाच आ जाए, मालक की बंदगी दे विच उसकी याद दे विच किते जाग सकीए, उसकी प्रार्थना विच उसके नाम नाल जुड़ के किते जीवन सफल कर लईए। कि ऐसा ना होवे कि गुरु आखे सिखा मैं तैनू देखदा रहा, बुरे काम को ऊठ खलोया, बुरे काम वास्ते तू उड़दा रहा, नाम की बेला पै पै सोया। नाम वास्ते तू कहंदा सी कि उठ नहीं हुंदा मेरे कोलों। बुरे काम वास्ते मनुख उठ पैंदा है, अद्धी रात भी उठ पैंदा है। और गुरु कहंदा है कि नाम की वेला होवे ना तो बंदा आलस कर जाता है, अज नहीं कल, अज नहीं कल। इनू कहो ना अमृत छक लो, कहंदा अगले साल छकांगे, पता नहीं अगला साल आना भी कि नहीं आना। एक श्वास का विसा नहीं, हर जपद्या खिन टिल ना कीजी मेरी जिंदड़ी है, मद के जापै सा आवे कि ना आवे राम। सो गुरु कृपा करे सानू जिन्हां असलीयतां तो जिन्हां विचारां तो बाबा फरीद जी ने सानू जाणू कराया, इन्हां विचारां नूं अपने जीवन दे विच जे नसीन करिए और अपनी इस असलीयत नूं, इस मौत दे दृश्य नूं देख के और रहिंदे सवास उस खुदा की बंदगी, परमेश्वर की याद, परमात्मा के सिमरन विच लाइए ताकि ये मनुखा जीवन के मिले हुए सवास
उसकी याद में जुड़ के सफले हो सकन। और जिन्होंने उसकी याद में इन्होंने सवासां नूं जीविया उन्हों दे हो जाणगे ये लोक सुखीए पर लोक सवेले नानक हर को आपे मिले। अनंत भुलां दी खिमा मेरियां भुलां मेरी झोली विच गुरु के बचन हृदय च वसाणा। प्रेम सहित गुरफतेह दी सान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहब जी ज्ञान तान कित कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु साहब जी धनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा। आत्म जिन्ह सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिन्ह सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग सरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग राव। जन के चरण वसै मिरहियर संग पुनीता देही। जन की तूर देह कृपा निध नानक कै सुख एही। जन के चरण वसै मिरहियर संग पुनीता देही। जन की तूर देह कृपा निध नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ता आखिए करते का होए विचार उतित कर गावो सोहिला सगुरु सज्जनहारो। तुम गावो नरपो का सोहिला हूँ बारी सोहिला सदा सुख होए रहा। जेड़ संभालन देखेगा देवनहार तेरे दाने की दाते कम समार। सम्मत साल ख्या मिल कर पावो तेल देव सज्जन असी सड़ियाँ जो होवे साहिब सो मेल। कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिए नानक से दे आवन रागा सा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को वेस अनेक बाबा राग बढ़ाई तो रहाओ। से चसिया कड़ियाँ पैरा तिती बारी महा हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश। राग तन्हासी महला पहला। गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तो आलोपम चबरो करे सकल बंडाए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भखड़ना तेरी आरती नता शब्द बाजंत पहरी रहा। सहस तब नैन नैन है तो एको सहस मृत नायक तो ही सहस पद विमलन एक। गंदीप चलत मोहि समय जो जोत है सोए तिस चानन साखी जोत प्रगट होए। जो तिस भावै सुआरती होए मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूरी महला चौथा। काम क्रोध नगर भरया मिल साधु खंडल खंडाहे। पूरब लिखल के गुर पाया मन हल्य मंडल मंडाहे। कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे कर दंडोत पुन वड्डाए रहाओ। साकत हर साध न जाने तन अंतर हूँ मैं कंडाहे। जो जो चला चुबे दुख पावे जम काल सह से डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मन पो खंडा है। अविनाशी प्रभ पाया परमेश्वर बहुत सौ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड्डा है। जन नानक नाम धार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूरी महला पंजवा। करो बिनंती सुनो मेरे मिता सन टहल की वेला। इहाँ खाड़ चलो हर लाहा गए वसन सुला घटा दिनस रह नारे मन गुर मिलका सवारे रहाओ। एह संसार विकार ब्रह्म ज्ञानी सहज गाय प्याव रस कथा तिन जानी बिहाजो हर गुर तेम न बसेरा।
ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜ